currently you are staying at your home and you are trying to fight with the COVID-19. You are following all kinds of rules, all kinds of regulations, and by staying at your home, you are also taking the online classes. But students, whatever the topics already covered during the online classes, you have to do the practice also. Many kinds of apps are there, many kinds of things are there that you are going to use and try to solve the queries, try to make the programs, right? So students, stay safe and be secure at your home. And with this, please let me introduce myself. My name is Viren and I am your information technology teacher. Students, as you know that right now the series of various videos is going on related to Java programming. Right now, by watching this video, you can have the free one kind of training for Java programming, absolutely free for you, right? And you have to do only one thing: just watch my video, give your comments, give your feedback, right? And if you have any kind of query, immediately get in touch with me, right? So students, first of all, before starting the today's topic, let's have a welcome. I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. And in today's class, what we have to understand, to answer here. First of all, as you know that we have started the classes for object-oriented programming, and in this we are going to have the topic access modifier. In the last class, we have understood about the constructor, and we have seen about parameterized constructor and default constructor, right? But in this video, we are mainly focused on the access modifier. Students, as you know that when we are declaring any class, जब हम किसी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पब्लिक क्लास और क्लास का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर इन्फो। इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ मैंने लिख दिया इंट ए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक यहाँ पर मेथड बना दिया है जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पर डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने लिख दिए, ठीक है। और ये चीज आप देख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये किसी पैकेज से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने लिख दिया पैकेज, और मैंने यहाँ पर जो पैकेज का नाम है लिख दिया मैंने पैकेज 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब आप अपना प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे पैकेज को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पैकेज को डिक्लेयर कर देते हैं, तो अगर आप एक्सेस मॉडिफायर आप डिफाइन नहीं करेंगे या कोई भी, तो बाय डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसका नाम डिफॉल्ट है, वो आपका दिखता नहीं है लेकिन वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, तो पब्लिक यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख दूँ यहाँ पर, तो प्राइवेट जो होगा वो एक्सेस मॉडिफायर है। प्रोटेक्टेड ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, जैसे कि आपने C++ में हमने पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर अब सवाल ये होता है कि जब हम पब्लिक यूज करते हैं तो इसके यूज करने से क्या होगा? What will happen if we use the public access modifier? And instead of using the public, if you are going to use the private, then what will happen? Right? So these questions will definitely gives the one kind of, suppose you can say, a problem for you, because if you do not know the basics of these things, you are unable to cope up with the advanced programming skills, right? So right now, by watching this video,
you will have the answers of all the questions. So without waiting any of the time, I am going to have my laptop screen. In that laptop screen, first of all we'll have a little bit of theory, and then after I will give you the practical demonstration for the same. Then by seeing the practical demonstration, you are able to understand how the axis modifier is declared, how it is sliced, right? And what will happen if we are going to use the axis modifier for the same, right? So without wasting any other time, please come to my laptop screen. Okay? So students, now you are on my screen, laptop screen, and we are going to have elaborate the details about axis modifier. So first of all, we'll have a small theory classes, and then we'll have the practical demonstration about the same, right? So students, it's a request, kindly do not skip any of the part from the video, right? Now it's time to have one of the theory class. So let's open it. So right now you are able to see the axis modifier topic. In this, first of all, we should know about what is axis modifier. As you know that axis means one kind of to reach, modifier means to have a manipulation, to have the editing, right? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं आप, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने अपने दायरे हैं, उसी की वजह से आप उसको जो है उस सीमा तक ही उसको एक्सेस कर पा रहे हैं आप. सो whenever you are declaring any of the class, so whatever the members are there, okay, that all members are accessed from the outside of the class. The reason is they all are declared public, right? So according to the the teachers of programming, it's not a good practice for that. Okay, if you are creating any kind of object and that object is going to use to access any of the data members or any of the class members, okay, so it means that the whatever the things you are trying to access, okay, that's not good enough to use in programming skills, right? So I mean to say, first of all, you should make a note of it. When the data members of the class are declared, they can be accessed from the outside by default. Okay, that's the rule, right? But you want that the particular data member can be accessed within the class or within the package only, then we should use some kind of access modifier so that the particular data members cannot be accessed from the outside. They are restricted to the some of the scope only, right? That's why the access modifier is also called as scope modifier, yeah, scope specifier also, right? So right now on the screen you are able to see a small program here. So first of all, one package is declared here. The name of the package is Java programs, and apart from that, one class is created and many kinds of string variables are created, including the double variable, but all are private. अब प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर अपने इन स्ट्रिंग वेरिएबल्स को या इस डबल वेरिएबल को क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहेंगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप. रीज़न ये, अब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करने की वजह से उस क्लास के लिए ही लिमिटेड हो गए. अब आप केवल उस क्लास के लिए ही यूज़ कर पाएंगे आप, इसके अलावा आप उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे आप. जैसे मान लेते हैं आप पैकेज 1 बनाया आपने और पैकेज 1 में कोई क्लास बनाया. जब आपने उस क्लास को बनाया तो अब किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाने के बाद उस क्लास तक ही सीमित हो गया, वो उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे आप.
अगर आप उस क्लास के बाहर उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेथड दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इस समय जो थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हैं उस थ्योरी क्लासेस में हमारा ध्यान ये है कि जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर वो करता क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो केवल और केवल उस क्लास के लिए ही वो सीमित हो जाएगा और क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, नाउ 2 lines are written there. Private members of the class cannot be accessed from the outside of the class. That's a very very important thing. And declaring the data members of the book class private, we won't be able to allow to access to them in the book test class. मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा है बुक, और एक और आपने यहाँ पर क्लास बनाया है जिसका नाम है बुक टेस्ट। अब बुक टेस्ट पे जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बुक क्लास के मेंबर्स बुक टेस्ट वाले क्लास में यूज़ हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है ये। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्लास में जो भी वेरिएबल्स लिए हैं वो आपने प्राइवेट आपने डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा और आपका है यहाँ पर, लेट मी स्क्रॉल अप। चलिए देखिए, सो स्टूडेंट्स राइट नाउ you are seeing one small program here, and in this program one class is created, and inside the class one of the main function is also there. So for accessing the content of the book class, okay, in this here in different class you are going to create a new object here. So as you know that the name of the class earlier, the name of the class is book, okay, so right now that's why it is written here book, and book one is the object, and then new operator, and then apart from this the book is the parameterized constructor is used here, and some parameters are passed here, right? And if you want to access the details of the book one class members, so in the drop down loop whenever you use the book one dot, then all the functions, all the members are visible, okay, but right now due to the use of private the data members are not visible, right? कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जब आपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही डॉट लगाएंगे आप, डॉट लगाने के बाद यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो सब विजिबल हो जाने चाहिए, लेकिन आपने प्राइवेट यूज़ कर रखा है, ठीक है, बुक वाले क्लास में, इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ सामने नहीं आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर सिंस ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द बुक क्लास वर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, दे आर नॉट विजिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर विजिबल हो जाएंगे लेकिन क्लास के आउटसाइड विजिबल नहीं होंगे। NetBeans does not display the private members, ठीक है, in the list of available options। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि जो डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनके फंक्शंस हैं वो डिस्प्ले हो जाए ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक्सेस करने पर, तब वो चीज़ डिस्प्ले भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पब्लिक जो आपका एक्सेस मॉडिफायर है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो सब हमारे पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो ये छोटी सी हमारा थ्योरी पोर्शन था जिसको कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे यहाँ पर और भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है,
So students, right now you are on my presentation, and on the presentation you are trying to access what is access modifier. You are trying to understand what is access modifier. Access modifier is also called visibility mode or scope modifier या scope specifier. टोटल 4 तरह के हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, पैकेज प्राइवेट कहिए या उसको डिफ़ॉल्ट कहिए। ठीक है, अब चूँकि हम जावा की प्रोग्रामिंग स्किल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इस वीडियो में यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, सो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पब्लिक का यूज़ हम किस तरह से करेंगे और उसके बाद प्राइवेट का यूज़ कैसे करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं किसी क्लास की, सो क्लास के अंदर, ठीक है, आपका वहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर पहले से जो यूज़ होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है, या फिर अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो पब्लिक आपको वहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर दिखेगा। ठीक है, तो जब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पैकेज में मान लीजिए 2 पैकेजेज हैं, पैकेज 2 में हैं आप और पैकेज 1 के आप क्लास को यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, या आप इसका उल्टा सोचिए, पैकेज 2 के क्लास को आप पैकेज 1 में यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। और अभी मैं बताऊंगा आपको मैं अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से कि यहाँ पर किस तरीके से हम पैकेज को क्रिएट करते हैं, अलग अलग पैकेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब पैकेज बन जाएगा तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से प्राइवेट फंक्शंस कर रहा है या किस तरह से पब्लिक फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो क्लास है या इंटरफेस है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका एक्सेस मॉडिफायर है क्या होता है। तो मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट या पब्लिक। इंटरफेस हम आगे पढ़ेंगे, हम जब जावा के बिल्कुल कोर जावा में और हम डीप जाएंगे तब। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लिखा, उसके बाद क्लास कीवर्ड एक लिखा और क्लास नेम लिखा आपने, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पर जो क्लास हमने एक बनाया है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, क्लास बनाया और क्लास बनाने के बाद लैपटॉप यहाँ लिखा और ये करली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। और इसी के बगल में एक और हमने क्लास बनाया है, पब्लिक क्लास लैपटॉप करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है कि पहला वाला जो आप देख रहे हैं जिसमें कि मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है पहले से ही, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पहले से ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और जिसकी हेल्प से यहाँ पर आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इसके जो मेंबर्स हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो पाएंगे, उसी क्लास के मेंबर्स इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आपने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब कि आप आउटसाइड द क्लास इसको कहीं भी कैसे भी करके आप यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये रहा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लास के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड में कि विजिबिलिटी मोड किस तरह के होते हैं। जैसे अगर हमने किसी क्लास को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो उस पैकेज में पब्लिक डिक्लेयर किया तो उस पैकेज 1 हो या पैकेज 2 हो या 3 हो, कोई भी हो, सब में एक्सेस होगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट है वो, तो केवल उसी पैकेज में वो आपका एक्सेसिबल होगा, अदर पैकेज में वो एक्सेसिबल नहीं होगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर छोटा सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो हम समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग पैकेज बनाने के बाद और किस तरीके से वो यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर है वो कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। चलिए पहला वाला देखिए आप, एक है मैंने पैकेज डिक्लेयर किया, पैकेज का नाम है लैपटॉप, इसके अंदर एक क्लास है, क्लास का नाम रखा मैंने डेल, करली ब्रैकेट ओपन किया और बंद कर दिया। फिर इसके बाद बगल में
पैकेज लैपटॉप है, ये वही पैकेज है। इसमें हमने एक और क्लास बनाया है जिसका नाम रखा है हमने HP। ठीक है, नीचे देखिए ये है हमारा एक स्कोप बना दिया कि ये एक हमारा पैकेज बना हुआ है। इस पैकेज में 2 क्लास बनाए गए हैं और इसके जितने डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो इस क्लास में आपस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरा पैकेज बनाया। दूसरा पैकेज में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा MyPC। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर पैकेज है, जो हमारा कंप्यूटर पैकेज है वो लैपटॉप के जो क्लासेस हैं या उसके डेटा मेंबर्स हैं एक्सेस नहीं कर पाएंगे। विद इन द पैकेज मैंने आपको यही बताया था कि जब आप डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करते हैं यहाँ, तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने पैकेज के अंदर जो भी क्लास मेंबर्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि जो MyPC है, जो क्लास है, ये HP क्लास और डेल क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में लेके चले हम, तो लैपटॉप एक मान लेते हैं फैमिली है ये, इस फैमिली में डेल और HP नाम से 2 लोग रह रहे हैं। तो आपस में ये फैमिली के मेम्बर्स अपने स्कोप को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन वो चाहेंगे कि अगर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहें तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। So students, I hope you are able to understand till now, okay, what way I have tried to give you in this video. Okay, now let's move. अब हम देखते हैं कि जब हम हर एक क्लास को पब्लिक अगर डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा। सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक पैकेज है, एक पैकेज में 2 क्लासेस हैं, डेल नाम से, HP नाम से, दोनों ही क्लासेस पब्लिक हैं, दोनों ही क्लासेस पब्लिक हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपस में एक पैकेज में जितने भी क्लासेस में आपस में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट पैकेज हमने बनाया है कंप्यूटर के नाम से, उसमें क्या है, आपका पब्लिक डिक्लेयर कर लिया। पब्लिक डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पर एक क्लास है MyPC के नाम से, वही पब्लिक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो पब्लिक हमारे जो डेटा मेंबर्स जो हमारे हैं बने हुए हैं, जो क्लास बने हुए हैं, वो कंप्यूटर की जो हमारे पैकेज है उसमें कैसे यूज़ हो पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लैपटॉप जो हमारा पैकेज बना हुआ है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट लैपटॉप डॉट स्टार एंड सेमीकोलन, इस तरह से लिखेंगे आप। ऐसा करने से आप जो मेंबर फंक्शंस या फिर आपने जो लिखा है यहाँ पर डेटा मेंबर्स, उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप चाहे पैकेज 1 में रहें या पैकेज 2 में रहें, आप किसी भी प्लेस पर रहें, यूज़ कर सकते हैं आप उनके मेंबर्स को या उनके डेटा को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये रहा पब्लिक का मतलब। अभी तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट अगर करते हैं तो प्राइवेट में क्या होगा, विद इन द क्लास वो लिमिट हो जाएगा, बाहर यूज़ नहीं हो पाएगा। पब्लिक करने से बाहर भी यूज़ हो जाएगा। तो मेन एक डिफरेंस आपने ये समझा आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को भी पब्लिक या प्राइवेट हम कर सकते हैं आप, या डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप, या प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका यूज़ क्या है और क्या इसका फंक्शन है। पहले हम देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स में पहले एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखेंगे आप, फिर इसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम, सबसे लास्ट में सेमीकोलन। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। एक्सेस मॉडिफायर लिखा, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम और सबसे लास्ट में सेमीकोलन। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब एक एग्जांपल के लिए इंट रोल लिखा। अब इंट रोल में यहाँ पर देखिए कोई भी डेटा टाइप, कोई भी हमारा एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या किया यहाँ पर, समझाने के लिए मैंने लिख दिया पब्लिक इंट रोल, यानी कि ये जो हमारा डेटा मेंबर है रोल के नाम से, ये अब किसी भी पैकेज में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मेंबर फंक्शन आपको बनाना है यहाँ पर, तो आपको एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखना होगा। एक्सेस मॉडिफायर के बाद रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। क्या रिटर्न टाइप है, इंट है, डबल है, स्ट्रिंग है, क्या चीज़ है, वॉइड है, सब लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। उसके बाद लास्ट में मेथड का नाम, फिर इसका पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ वर्ड लिखा है और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखा DISP ब्रैकेट लगा दिया और इस वर्ड से जस्ट पहले मैंने लिखा है प्राइवेट। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सेस मॉडिफायर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा फंक्शन है, दोनों को पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट हम बना सकते हैं। बनाने के बाद इसका जो स्कोप है वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक के बारे में थोड़ा सा और, कि हमने पब्लिक में क्या देखा, क्या समझा। पहला पॉइंट देखिए, एक्सेसिबल इन होल जावा वर्ल्ड। बिल्कुल सही है कि आप यहाँ पर किसी भी पैकेज में रहें और किसी भी पैकेज में रहते हुए कहीं भी उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 को देखिए, विद इन पैकेज 1 एंड इट्स क्लासेज एंड इट्स सब क्लासेस। मतलब क्या हुआ कि आप पैकेज 1 में जो क्लासेस बनी हुई हैं या उसके सब क्लासेस हैं, आप वहाँ पर भी जो अगर आपने पब्लिक कोई चीज़ डिक्लेयर किया है तो एक्सेसिबल होगा वो। और आउटसाइड जो हमारा है क्लास, जैसे पैकेज 2 में हम आ गए, उसके जो क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, वहाँ भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक हमने पैकेज बनाया जिसका नाम रखा पैकेज 1। इसके अंदर मोबाइल नाम से क्लास बना दिया और एक हमने बनाया लैपटॉप के नाम से क्लास, वो भी बना दिया है। और इसके अंदर एक हमने सब क्लास बनाया है डेल के नाम से। ठीक है, अब पैकेज 1 में एक दूसरे पैकेज 1 के अंदर मोबाइल, डेल, लैपटॉप जितने भी हैं ये आपस में जो भी मेंबर फंक्शन है सबको यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही पैकेज 2 में हो पाएगा। अब एक दूसरी चूँकि अपने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है तो पैकेज 2 का पैकेज 1 भी यूज़ कर पाएंगे, पैकेज 1 का पैकेज 2 में भी यूज़ कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा पब्लिक के बारे में। और अब जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट के बारे में। ये रहा प्राइवेट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम नॉट एक्सेसिबल इन होल जावा वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये हुआ कि केवल ये क्लास तक ही लिमिट है, क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली विद इन सेम क्लास इवन आफ्टर इनहेरिटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेस इन सब क्लासेस। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आप अपने क्लास में जो आपने बनाया है उस क्लास के अंदर जितने मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर हैं, इनहेरिट होने के बाद भी आप उसके सब क्लासेस को या उसकी क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। जिस क्लास में आपने प्राइवेट बना रखा है केवल वही क्लास में यूज़ करेगा और कहीं नहीं यूज़ हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि प्राइवेट का फंक्शंस क्या है। और जब मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी आपको बताई थी तो वहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम लेकर के बताया था आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, so students, right now whatever till now we have finished, that's a theory part. Now it's time to have the practical demonstration so that you can have the better understanding about these access modifier. Okay, so students, right now you are on the screen of Java NetBeans. Okay, and here you will try to understand how the access modifier is used, how they are functioning here. Okay, but before starting the same, first of all we had to understand how the package is going to be created here, right? As you know that this one add and this one YouTube, there are two projects are there, and inside the project these are the Java files. add.java, this is the one kind of Java file, and here the YouTube project, this is the name of the package is the default package, and in the default package array, for, while one, these are the files, Java files, right? So how we are going to create the particular package, how we are going to create the particular Java file? Okay, let's have a quick review and then we'll proceed further, right? First of all, select this project, then right click. After that right click you are having an option new. In that new,
try to search where the Java package is. See, this is your Java package. Click one time. After click one time, you are having the new Java package, right? Here you can write the name of your package. Suppose I am written here mobile 1. This is the one kind of package name, and then click on finish button. See, one more package is created here. The name of that package is mobile 1. Now again select the mobile 1, right click, and then go to the new, and then create here Java class. Okay, now here you can write here any of the name of the class, and then click on finish. Now it is taking a little bit of time, so just have a patience. See, so right now this Java file is created under the package. The name of the package is mobile 1, right? And after the mobile 1, you are having your Java files, right? So students, I hope you are able to understand how we are going to create the particular package. Okay, so students, by using the same process, I have created the 3 packages, right? Package 1, see here, package 1, package 2, and package 3. Inside the package 1, I have just make a double click. 2 files are there. One is named as laptop, and second is known as mobile. This is inside the package 1. Now in package 2, only one Java file is there, that is computer.java, and in package 3, that is it.java. So for giving the best understanding, I am using several kinds of small programs, so that you can just understand how the scope are going to be limited here, right? So let's have the detail about package 1 and the first program, laptop.java. See, in this first I have automatically written here package. The name of the package is package 1. Okay, so this is the first line. It is automatically written here. No need to write anything. Public class laptop, it is automatically written here. Now I have to declare the something else. Now public int b equal to 20. This is the one kind of data member. This is the one kind of data member. Right? This is the one kind of data member. Now this is the called one kind of you can say member function. This is one kind of member function. Okay, this is the one kind of member function, and inside the member function I am just going to here take a printout of the value, that is b, right? So now right now these all things are happening in laptop class. ठीक है, लैपटॉप क्लास में केवल 2 ही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर. एक तो हमने डिक्लेरेशन किया है इंटीजर का, और उसे हमने बना दिया पब्लिक. पब्लिक बनाने का मतलब ये हुआ कि अब वो चीज़ कोई भी पैकेज यूज़ कर सकता है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने जो यहाँ जो ये लिया है displ. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन नेम है ये हमारा पब्लिक में है. इसे मैंने पब्लिक मैंने दिखा रखा है यहाँ पर. इसका मतलब कि आपका जो डेटा मेंबर है और जो मेंबर फंक्शन है अब किसी भी पैकेज में या आउटसाइड क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा आपको. ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि mobile.java में क्या क्या चीज़ें हैं. पैकेज हमारा वही है, पैकेज 1 ही है. इसमें मैंने क्या किया है, a = 10 किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज हमारा है, बिल्कुल वही है, नो चेंज. ठीक है, पब्लिक यहाँ पर भी है. अब आते हैं पैकेज 2 में. अब पैकेज 2 में देखिए, पैकेज 2 सेमीकोलन, क्लास का नाम है कंप्यूटर, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ले ली है c = 30, और उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है. ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको प्रिंट कर लिया है. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक पैकेज है, एक पैकेज 1 में 2 फाइलें हैं, पैकेज 2 में 1 हैं. अब हम आते हैं पैकेज 3 में. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 तरह के मैंने पैकेजेस जो मैंने यूज़ किए हैं उसका पहले हम नाम लिखा है.
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अभी तक मुझे ये आपकी जो प्रोग्राम्स हैं उसको मुझे रन करके दिखाना है, उसको मुझे रन करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि सबसे पहले छोटे छोटे मैंने क्लासेस बना लिए अलग अलग जावा फाइल्स में, और जब मैंने एक नया पैकेज बनाया उस नए पैकेज में मैंने यहाँ पर सबको मैंने मेन फंक्शन का यूज़ करने के बाद सबको बारी बारी कॉल किया है यहाँ पर। अब कैसे कॉल करेंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, ये पैकेज 3 है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। अब चूँकि आप पैकेज 1 के डिटेल्स को आप यूज़ करना चाहते हैं या पैकेज 2 के डिटेल्स को यूज़ करना चाहते हैं, अब आपको ये लाइन कंपलसरी हो गई। इंपोर्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज 1 डॉट स्टार का मतलब जितने भी हमारे जावा फाइल्स हैं वो सब हमारे यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे, शामिल रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद इंपोर्ट पैकेज 2 डॉट स्टार, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पैकेज 2 को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद पब्लिक क्लास आईटी ऑटोमेटिकली आपका क्रिएटेड होगा। अब ये रहा आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने फंक्शंस बना रखे हैं उन सबको बारी बारी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि प्राइवेट रहेगा तो कैसे एक्सेस होगा, पब्लिक होगा तो कैसे एक्सेस होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी आपको। तो मैंने क्या किया, मोबाइल का जो हमारा ये फाइल है यहाँ पर इसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने आपका बनाया ऑब्जेक्ट। देखिए मोबाइल ऑब्जेक्ट इस ये OBJM और न्यू मोबाइल, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप फाइल के लिए मैंने बनाया ये वाला और कंप्यूटर के लिए ये वाला। अब मैंने एक एक करके कॉल करना है तो DSPM कहाँ है, ये देखिए ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैंने वहाँ पर कॉल किया। और अभी देखिए पब्लिक है ये, अभी देखिए ये पब्लिक है ये, तो यहाँ पर पब्लिक होने के बाद अब देखिए मैंने कॉल किया, ठीक है। फिर इसी तरह से मैंने बाकी जो थे उनको भी मैंने कॉल कर लिया। तो अभी तक जितना भी देख रहा है यहाँ पे सब कुछ पब्लिक है यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉल करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ में आया होगा आपको। अब हम रन करते हैं। रन करने का वही तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे रन फाइल, और आप Shift+ F6 भी प्रेस कर सकते हैं आप। चलिए लेट्स वेट एंड विल हैव द रिजल्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, जस्ट वेट फॉर इट। So students, right now I think you are able to see the result, right? Mobile class package 1 A equal to 10, laptop package 1 B equal to 20 and computer में C equal to 30, ठीक है। आपका यहाँ रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आ रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जो प्राइवेट फंक्शंस हैं उनको भी यूज़ करके देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो आपका लैपटॉप फंक्शन है यहाँ पर लैपटॉप, इसे यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है यहाँ पर इसे मैं करने जा रहा हूँ प्राइवेट। अब इसे मैंने कर दिया प्राइवेट, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट होने के बाद और इसको भी मैंने कर दिया प्राइवेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पर कि प्राइवेट होने के बाद क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ वही है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रन करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या दिखता है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है यहाँ पर। सो स्टूडेंट जस्ट बी हैव अ पेशेंस। देखिए अब यहाँ पर जो चीज़ पब्लिक है उसका रिज़ल्ट आ गया, बाकी देखिए एरर भी आ गई यहाँ पर अब, ठीक है। रीज़न कि यहाँ पर जो स्कोप है, ये जो आपने लैपटॉप क्लास आपने देखा है यहाँ पर, ये जो लैपटॉप क्लास आप देख रहे हैं, जो B की जो वैल्यू है वो उस क्लास तक के लिए सीमित हो गया, अब उस क्लास तक के लिए सीमित हो गया। तो अब आप उसको इस क्लास से बाहर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। और ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं आप, ये जो फंक्शन है ये, इस फंक्शन को भी इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यूज़ करने का एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं किसी और पैकेज में, तो अब आपको ये अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे देखिए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर,
और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न बी, यहाँ मैंने लिख दिया रिटर्न बी, ठीक है। और इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एरर भी दिखा रहा है यहाँ पर इनकम्पैटिबल टाइप, ठीक है। रीज़न यही है कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर जो प्राइवेट डिक्लेयर किया है उसी वजह से स्कोप आपने लिमिट कर दिया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ whatever the things I am trying to deliver here, okay, you are able to understand, okay. So right now whatever things are earlier done, I have just do as it is, okay. So students, first of all, after watching the video, if you have any kind of query, any kind of question, just be immediately inform me, or do me a WhatsApp, or just give me a YouTube comment. I'm always here to give you all kind of support, okay. Okay students, so I'm understood here that you are trying to cope up with this problematic situation, right? The situation is when you are going to declare the private members, then is it a possibility to have the accessibility on a different package? I'm sure you are having the answer of this question in the practical demonstration, right? So students, I am absolutely sure that you all are able to understand what I am trying to deliver in this video. But students, if you have any kind of query, any kind of doubt, definitely you can get in touch with me. And one more thing, if you find anything useful in this video, then please do a like, subscribe my channel, and if possible for you, just press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of notification for my updated or latest videos. So now it's time to come to end this video, and we'll meet in the next video with a new topic. And now it's time to say bye bye, and we'll meet in next video. Thank you so much for watching.